Good morning, students. Today we are going to study a trump of surgery. The student of class 10, and this is the English literature class. We are going to study about a chapter, a trump of surgery. A trump of surgery, written by the narrator's name must be noted, please. James Herriot. A Trump of Surgery is the story written by James Herriot. Okay, now we know that in this chapter, the literature, we have to get familiar with a dog. This story is based on a faithful animal, that is the dog, in which we will discuss only the summary, the first class. Please note it down. The summary of Trump of Surgery. See, a Trump of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. Does B perform an operation? Does the dog recover? Means these are the questions which will come in the middle or at the end of the story. Mr. Promfy was a rich and emotional lady who has a cute pet. It was a small dog. She named it Tricky. She loved him so much that she usually overfed him. Tricky had put on a lot of weight, which made him slow and pathetic. When Dr. James Herriot saw the dog like a bloated Suzette, he was very shocked. He made a plan and told Mr. Frompe that Tricky needed treatment for a disease which was possible only in the hospital. देखिए, यह कहानी ट्रिकी एक कुत्ते के बारे में है, ठीक है, जो श्रीमती प्रॉम्फे नामक एक अमीर महिला है, जो एक कुत्ता को पालती है और वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है और जो कुछ भी चाहती है, यानी देना, और कुत्ता जो कुछ भी चाहता है उसे वो मना नहीं कर पाती है, बिकॉज शी लव द डॉग वेरी मच. एज शी वॉज रिच, वो बहुत अमीर थी और उसके पास बहुत सारे उसकी एक हॉबी हो गई थी कि मुझे जानवर को पालना है, उसकी जो भी इच्छा है वो मुझे पूरी करनी है. तो मिसेस श्रीमती प्रॉम्फे नामक जो औरत है वो कुत्ते से बहुत प्यार करती है और प्यार के बदौलत उसने इतना कुछ कर दिया डॉग को कि दैट इट फेल इनटू एन डिजीज. Means I was really worried about the Tricky this time, she told. When doctor met with that lady, the doctor told that yes, Mr. Prompe, as I saw the dog I was very worried. बिल्कुल सही बात है. किसी चीज़ की एक आकार, एक वॉल्यूम, एक एरिया, एक अपनी होती है ना पहचान, उससे अगर आप बाहर जाओगे तो शक तो होगा ही. और डॉक्टर होता है. ही कैन अंडरस्टैंड बाय योर बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग. ही अंडरस्टूड एंड टोल्ड आई वॉज रियली वरीड अबाउट द टॉके दिस टाइम. वो ट्रिकी को देखकर समझ गया कि कुत्ता में कोई ना कोई परेशानी है. The doctor knew that Mr. Prompe would not be able to keep the dog on a proper diet. When the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry
If he was slow to approach for food, he was given food at fixed intervals. Soon he shed off a lot of his body weight and become quiet. कहानी शुरू होती है जब श्रीमती प्रॉम्फे एक अमीर महिला अपने कुत्तों को टहलने के लिए बाहर ले जाती है। ठीक है, पास का एक पशु चिकित्सक हैं, उनके घर के बगल में रहते हैं, जिनका नाम आपको मैंने पहले ही जिक्र किया था, डॉक्टर साहब। वो बोले कि देखो, जो जानता है कि कुत्ता कैसा होता है, कुत्तों को कैसा दिखना चाहिए, वो देखकर चौंक जाता है कुत्तों को, क्योंकि वो देखता है कि कुत्ता प्रत्येक छोर पर एक पैर एक साथ फूला हुआ है, उसकी बॉडी फूली हुई है, सांस जैसा लेना चाहिए वैसा वो ले नहीं रहा है, वैसा वो दिख नहीं रहा है। मतलब वो कंप्लीटली क्या है, अस्वस्थ है। वो जो मिस्टर प्रॉम्फी है वो टहलने के लिए लेकर कुत्ते को बाहर निकली हुई है। वो इतना लाड प्यार सब कुछ देती है, घर में खिलाना पिलाना, बाहर उसको टहलाना। तो जैसे ही वो रोड पे लेके निकलती है तो बगल के ही वो डॉक्टर है, वो कुत्तों को देखकर और पहचान गए, कुत्ता को देखकर पहचान गए कि नहीं, देयर इज प्रॉब्लम इन द बॉडी ऑफ द डॉग। सो ही पॉइंट्स देयर, he initiates his finger and told everything regarding the dog, that the dog is not in proper order। वो चौंक जाता है क्योंकि उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, बॉडी फूली हुई है। अब वो फूला मतलब there is some problem। When Tricky was at home, he approved Mr. Promfy. He had a luxurious life when he was served with a crumb cake, chocolate and Horlicks. But when he came to the doctor, he became all right. When Mrs. Prompy saw the active dog, she shook the doctor and felt that it was trump of surgery. Mr. Promp was a rich and emotional lady who was a cute pet, who has a cute pet. It was a small dog. She named it Tricky. She loved him so much that she usually overfed him. Tricky had put a lot of weight and made him slow and pathetic. When Dr. James Harriet saw that fat dog like a bloated sausage, he was very shocked. He made a plan and told Mr. Prompy that Tricky needed treatment for a disease which was possible only in the hospital. The doctor knew that Mr. Prompy would not be able to keep the dog a proper diet. When the greedy dog went to the hospital, he had to remain hungry. If she was slow to approach for food, she was given food at fixed intervals, so she shed off all the body weight and became quite active. When Tricky was at home, he was pampered by Miss Prompt. He had a luxurious life when she was served with cream, cake, chocolate, and Horlicks. But when he came to the doctor, he became all right. When Mr. Prompy saw the active dog, she thanked the doctor and felt that it was a trump of surgery। देखो क्या हुआ कि वह उसे खाने के लिए अस्वस्थकर चीज़ें देने से रोकने की सलाह देता था। हालांकि मिस प्रॉम्प उसे मना करने में सक्षम नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, और जल्द ही वो बीमार पड़ जाता और डॉक्टर को बुलाया जाता। यथावाचक मिस्टर हैरियट तो किसी तरह ट्रिकी कुत्तों को अस्पताल में लेकर भर्ती करवाया, भले ही वह जानता था कि श्रीमती प्रम्प जो है अपने कुत्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी घर पे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खिलाती थी, हॉस्पिटल में वो चीज़ मिलना संभव नहीं है। और इन शब्दों को सुनकर लगभग शायद वो बेहोश भी हो जाती, इतना प्यार करती थी वो कि वो क्या हो जाती, बेहोश हो जाती। फिर वह कुत्ते को साथ ले जाती है, बिस्तर लगाती है, उसकी सारी चीज़ की तैयारियां करती है घर पे। जैसे उसी तरीके से उसने डॉक्टर से भी कहा है
कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं कुत्ता को इसी शर्त पे छोड़ सकती हूँ या मैं यहाँ रहूँगी, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और वो खुद डॉक्टर तैयार होता है उसके लिए और बोलता है कि ठीक है आप रहिए, उसके लिए चलिए बिस्तर लगा दीजिए और सर्जरी की तैयारी कर दीजिए, मैं कुत्ते की सर्जरी कर दूंगा, बाकी आप फिर वापस यू विल टेक टू योर होम। कुत्ता पहले 2 दिन तक ना तो ज़्यादा हिलता और ना ही कुछ अपनी खाना खा पाता था। दूसरे दिन वह चारों ओर देखता और थोड़ा थोड़ा सफलतापूर्वक अपने पैरों को हिलाने लगा, ओनली फॉर द मेडिसिन। एंड दैट टाइम मिस्टर प्रॉम्प्ट वाज नॉट एट द प्रेजेंट टाइम नियर द डॉग, वहाँ वो नहीं थी। वो तीसरे दिन बाहर जाना चाहता था और बाहर निकल जाने पर बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने तीसरे दिन साफ कर दिया कि नहीं, ये कुत्ता धीरे धीरे अपने चपेट में से बाहर निकल रहा है। देखो ये कहानी ऐसी है स्टूडेंट कि एनिमल्स को क्रुएली पेश नहीं आना चाहिए। डोंट फील क्रुएलिटी टुवर्ड्स द एनिमल। हमारी बहुत सारी जगह मजबूरियां हैं जहाँ कुत्ता ही क्या, बहुत सारे जानवरों के साथ हमें क्रुएलिटी फेस करनी पड़ती है। जैसे जू बना देना, अपने डोमेस्टिक एनिमल को रस्सी में घर पे बांध के रखना, ये तो रियली क्रुएलिटी है। बट देयर इज नो एनी सिंगल ऑप्शन व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। फिर ट्रिकी के धीरे धीरे रक्त में सुधार होने लगी, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। जब ट्रिकी एक लंबी ब्रॉडी की बोतलों के साथ खेलने लगा, कुत्तों के साथ खेलने लगा, अपनी बॉडी को इधर उधर अतिरिक्त करने लगा, एक बुद्धिमान जानवर की तरह काम करने लगा, तो डॉक्टर ने मिस प्रॉम्प्ट को याद दिलाया कि नाउ ही इज द डॉक्टर टोल्ड मिस प्रॉम्प्ट दैट योर डॉग इज गेटिंग रिकवरी। ट्रिकी वास्तव में अपनी मालिक को देखकर खुश हो गया जब वो आई, और जब वो आई तो कार में कूदकर बैठ गया। मतलब ये बीच की कहानी बहुत सारी है, समरी है, जैसे ये सब बहुत सारे अंदर में काम हुए कुत्तों के साथ डॉक्टर ने और जो भी है वहाँ मौजूद। श्रीमती प्रॉम्प्ट ने कहा कि उन्होंने जो भी किया है उसके लिए वह कभी भी उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाएंगी, और यह भी कि उनकी सर्जरी सफल रही थी क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गई। अरे उनके पास शब्द रहेगा तब तो, क्योंकि वो कुत्ता से इतना प्यार करती थी, इतना चाहती थी, जो कि वो डॉग अब इस धरती पे नहीं रह पाता, और उस डॉक्टर ने सारा कुछ करके उन्हें दे दिया इन ए पॉजिटिव वे। तो रियली उनके पास धन्यवाद ज्ञापन शब्द उनके पास नहीं है, और रियली नहीं होगा। स्पीचलेस हो जाते हैं हम लोग, सारे अभिभावक, सारे पेरेंट्स, जब एक हमारे लाइफ की सुधरता आ जाती है, हम एम को जेनिथ को टच कर जाते हैं, तब हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता है धन्यवाद देने के लिए। और जो भी डॉक्टर ने काम किया उसके लिए मिस्टर प्रॉम्प्ट को, ट्रिकी के लिए कोई भी एक वास्तव में अतिरिक्त शब्द नहीं है ताकि वो उसे दे पाए।